इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। हम तेरे सामने झुकते हैं, तेरी आराधना करते हैं। सिर्फ तू ही योग्य है परमेश्वर। तेरे नाम में हमें उद्धार है, तेरे नाम में हमें चंगाई है परमेश्वर। इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम सब उसकी ओर देखें। तेरा नाम सबसे ऊंचा है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। तेरा नाम मीठा है, तेरा नाम अच्छा है, तेरा नाम सच्चा है परमेश्वर। आइए हम सब उसकी ओर देखें और उसे कहें, इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं।
reading Psalm 127. Unless the Lord builds the house, they labor in vain who built it. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he gives his beloved sleep. Behold, children are a heritage from the Lord. The fruit of the womb is a reward. Like arrows in the hand of a warrior, so are the children of one's youth. Happy is the man who has the quiver full of them. They shall not be ashamed, but shall speak with their enemies in the gate. Thank you, Lord, for your word endures. Father, thank you, Jesus. Thank you, Lord. We come to in your Son, Jesus' name, Father. Thank you, Lord, as I praise and worship your name, Father. You come into our midst, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Holy Spirit, we welcome you. You take control, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I ask this prayer in Jesus' name. Amen. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. I am a child of God. Thank you, Lord. Thank you, Father. इस दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु जो आपने हमें दिया कि हम आपके सामने आ सके प्रभु. Thank you for this wonderful day, Lord. आपने हम सबको इकट्ठा किया उसके लिए धन्यवाद प्रभु. आपने हमें आशीष किया है उसके लिए धन्यवाद प्रभु. आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु. आपके प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया उसके लिए धन्यवाद प्रभु. Thank you, Lord. यीशु के नाम से. Amen. Proverbs 22:6. Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. प्रभु बहुत अच्छा है. लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा. हर बार हम लोग ऐसा सुनते हैं, चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स, obey your parents, obey your mother and father, and जो भी इंस्ट्रक्शन पिताजी देता है, पप्पा देता है, वो मानना चाहिए. ऐसा बहुत बार हम देखते हैं. पर टुडे गॉड इज सेइंग टू यू mother and father, train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart. Hallelujah. लड़के को मतलब आपके बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए,
और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। तो परमेश्वर का मार्ग उन्हें सिखाइए और दुनियादारी मत सिखाइए, परमेश्वर का मार्ग सिखाइए, जरूर परमेश्वर उनको आगे लेकर जाएगा। हालेलुया। ऐसा मत सोचो कि आप उससे मिस हो गए। उसके लिए प्रभु ने आपके लिए वचन दिया है, वो है मैथ्यू 19:14। But Jesus said, let the little children come to me and do not forbid them, for of such is the kingdom of heaven. 19 अध्याय और उसका 14 वचन। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। और एक वचन हम पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स 1 chapter 8-9। My son, hear the instruction of your father and do not forsake the law of your mother, for they will be a graceful ornament on your head and chains about your neck. और हम हिंदी में भी पढ़ेंगे नीति वचन उसका 1 अध्याय 8वां और 9वां वचन। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हम बच्चों की नाई परमेश्वर की ओर जाना चाहिए, और सच में जो अपना हृदय बच्चों की नाई रखता है वो बच्चों के जैसा ही गिफ्ट्स को पाता है। हालेलुया। और बच्चों के नाई बहुत सारे चॉकलेट्स उन्हें मिलते हैं। चॉकलेट्स मतलब आपकी जो कुछ इच्छाएं हैं वो पूरी करता है। तो प्रभु आज हमें सिखाता है, जो हमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उससे हमें तकलीफ नहीं होना चाहिए, पर उससे हमें खुशी होना चाहिए कि कोई है हमारे ऊपर रखा है प्रभु ने कि हम उनके इंस्ट्रक्शन को ले और हम आशीष को प्राप्त करें। वो आपके लिए क्या ठहरेंगे? वो आपके लिए मानो सिर के लिए शोभायमान मुकुट और गले के लिए कंठमाला होगी। वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो, उसके लिए प्रभु आज यही कहता है। आइए, ये समय है गवाहियों का और हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। जिस किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को महिमा करे। माझी मुलगी ना, तिचा मुलगा आहे ना मोठा, त्याला बरं नव्हतं, ताप येत होता, तर त्यांच्या इथं त्यांनी रक्त चेक केलं। पहिले म्हणे टायफॉइड आहे, त्यानंतर मग परत रक्त चेक केलं, मग तिने कामिनचं औषध घेतलं, परत रक्त चेक केलं तर त्याला काय सांगितलं तिथं प्रायव्हेट वाल्यांनी डेंगू म्हणून। तर परमेश्वराच्या नावाला मी धन्यवाद देते, आम्ही लय घाबरलो होतो, ऍडमिट केलं। परमेश्वराच्या नावाला मी धन्यवाद देते, पण तिथं रक्त चेक केलं, मग ते म्युन्सिपाल्टी वाले काय बोलले, म्हटले नाही डेंगू नाही, तुम्हाला त्या लोकांनी घाबरले, त्याच्या अंगामध्ये रक्त नाही बोलले, म्हणून त्याला अशक्तपणा आला आणि त्याला दम लागल्यासारखा व्हायचा। मग तिथं त्याला 2 बाटल्या रक्त चढवलं, मग आता तो बरा आहे। परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देते, परमेश्वर खूप महान आहे। आमच्या जीवनात परमेश्वराने खूप कार्य केले, पण डेंगू म्हटल्यावर पहिला माझी मुलगी याच्यामध्ये गेली म्हणून आम्ही लय घाबरलो होतो। तर मग आता त्याला बरं आहे, त्याला आज सुट्टी पण दिली। परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देते, परमेश्वर खूप महान आहे। परमेश्वराचं वचन आहे, मी तुम्हाला अनाथ सोडणार नाही। आणि माझी दुसरी एक साक्षी आहे सिस्टर, माझी काही पण कपड्याची मशीन बिघडू द्या, टीव्ही बिघडू द्या, काही पण बिघडू द्या, मिक्सर बिघडू द्या, मी जर मॅकिने घरी आणलं ना, त्याला हात जरी लावला तर ते लगेच चालू होतं। परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देते। परमेश्वर टीव्ही पण एवढे म्हणले 2-2.5 हजार रुपये लागते, पण त्या माणसाला घरी आणलं, मी दाखवलं, म्हणलं बघ काय झालं ते, तर त्यांनी बघितलं, तर ते म्हणलं काय नाही, त्याने असं असं केलं, बोला काय नाही। त्यांनी मग मी त्याला, ते बोला मी घरी यायचे 100 घेईन, मी त्याला 150 रुपये दिले। कपड्याची मशीन चालू झाली, टीव्हीचं पण तसंच, ठीक आहे, मिक्सरचं पण तसंच। परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देते, परमेश्वर खूप महान आहे। आणि माझ्या जीवनात तर भरपूर छोट्या मोठ्या साक्षी आहेत। प्रभु बहुत अच्छा है और प्रभु हमारी सरसेताई को अच्छा रखा है, और लेकिन
प्रभु नहीं छोड़ता, अपने बच्चों को सुरक्षित रखता है। हम धन्यवाद करते हैं सही समय पे सही सलाह देने के लिए प्रभु ने सही मार्ग दिखाया। हम धन्यवाद करते हैं इसका। प्रभु बहुत अच्छा है और सारी आशीषें जो हमारे सर से ताई के ऊपर है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु बहुत अच्छा है। आइए और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को महिमा करें। माझं चौथं सीझन झालं. चौथा सीजन चौथं सीझन. ओके। 3 पोरी आणि 1 पोरगं झालं. चौथ्याला मुलगा झाला. हा लय लोक म्हणजे असे बोलायचे मला तर जाणता आणला होता. ते म्हणले की जगणारच नाही. पण यांनी प्रार्थना केली ना तर आता बाळ पदशीर आणि मी पदशीर. धन्यवाद करते प्रभु का, हमारी बेटी को अच्छा रखा। 4 सीजर होने के बाद भी उन्हें सुरक्षित रखा, उनके बच्चे को सुरक्षित रखा और उनकी मन की इच्छा को पूरा किया। सच में प्रभु बहुत अच्छा है। आइए और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को महिमा दे। जैसे कि 30 तारीख को मेरा बर्थडे था, मैं 50 इयर्स कंप्लीट की। 51 इयर्स में मैं मतलब आ गया, तो मुझे यकीन नहीं था कि मैं लास्ट ईयर कैसा था कि मुझे नहीं लगता था। और मैं सोचती थी कि मैं क्या अगला साल देख पाऊंगी मेरे बच्चों को। मैं फाइनल एक का 12th में है तो मैं देख पाऊंगी उन लोग को, मैं उनका रिजल्ट देख पाऊंगी। मेरा कंडीशन ऐसा है, तो उसमें से भी परमेश्वर ने मुझे अच्छे से निकाल के 50 भी कंप्लीट किया और 51 में मैं आ गई। हाँ, और ऐसा था कि मेरी बड़ी बहन कैंसर में मर गई, वो भी 50 एज की थी। उसको फ्यूनरल वगैरह हो गया और मैं रात को सो गई। तो उसको मुझे एक ड्रीम आया था कि मैं 50 इयर्स की होती हूँ और डॉक्टर के मैं मुझे कुछ तो होता है तो मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। डॉक्टर बोलता है कि आपको तो कुछ भी नहीं, लेकिन आप 50 इयर्स का होगा ना तभी आपका डेथ हो जाएगा। और वो मेरा दिमाग में, मैंने बहन लोग को भी बोला कि बड़ी अक्का मेरी 50 में गया तो मैं भी शायद 50 में जाऊंगी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे संभाला और 51 में लेकर खाया कि गया। मतलब अक्टूबर का 3 तारीख को बहन लोग को फोन आया कि मम्मी का तबीयत खराब है, पूरा सूझ गई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था उसका हार्ट प्रॉब्लम है और किडनी प्रॉब्लम करके। प्रेयर का से मम्मी ऐसा है, आप लोग को भी, ब्रदर को भी मैंने फोन करके बोला था कि मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है। प्रेयर भी किया सब कुछ, लेकिन आज पाँव में सूजन है वगैरह सब। मम्मी भी प्रेयर करती थी, मेरे बहनें भी प्रेयर करती थी। डॉक्टर भी परमेश्वर ने इतना अच्छा दिया। वो भी कल्याण में इतना बड़ा डॉक्टर के पास लेके जाने के बाद भी कुछ भी फर्क नहीं आया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको और उसके पूरा सूजन उभर गया पूरा। और आज वो घर पे गई है, परमेश्वर ठीक कर देगा, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। He is my refuge, my fortress, my God, in him I will trust. प्रभु बहुत अच्छा है, वही मेरा शरण स्थान है, वही मेरा गढ़ है और मेरे परमेश्वर पर मैं भरोसा करूंगा। परमेश्वर सच में अच्छा है। जो उसकी ओर देखते हैं, जो उसकी ओर निहारते हैं, वो कभी उनके मुख लज्जा से शर्मिंदा नहीं होते। जैसे हमारी बहन ने परमेश्वर की ओर देखा और परमेश्वर ने इनके 50 इयर्स कंप्लीट किए और 51 ईयर में वो प्रवेश किए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने सिस्टर आपको बहुत बड़ी आयु दी है, हम लोग मरेंगे नहीं। आमीन आमीन आमीन। और जैसे आप ऐसा गवाही दे रहे थे तो मुझे याद आया, जब ओरेकल 8th में थी तो जॉय मुझे छोड़ने जा रहा था स्कूल। मेरी तबीयत बहुत खराब थी और बहुत सारे चर्च वाले जानते हैं इस बात को। और मैं ऐसे बच्चों को एग्जाम देते हुए एसएससी वालों को देख रही थी कि वो जा रहे हैं और मैं अपने स्कूल जा रही थी। मैं जॉय को ऐसा बोलती थी, जॉय कम से कम मेरे बच्चे का एसएससी में पूरा करो। लेकिन प्रभु बहुत अच्छा है, आज मेरी बेटी का एसएससी भी एचएससी भी हो गया। प्रभु ने मुझे जिंदा रखा। सच में प्रभु बहुत अच्छा है। हम मरेंगे नहीं, हम जरूर प्रभु यीशु के आगमन को देखेंगे और हम उसके साथ जरूर जाएंगे। हमें ऐसे यूं ही नहीं छोड़ देगा प्रभु। वो बहुत ही विश्वसनीय, बहुत ही फेथफुल फादर है। वो कभी नहीं छोड़ेगा। वो आएगा और हमें लेकर जाएगा
उस महिमा के बादलों में अपने साथ, हम जरूर उसके साथ जाएंगे। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हमारी बहन के लिए। वो कभी आपका हाथ छोड़ेगा नहीं। वो बहुत अच्छा खुदा है, न कभी वो छोड़ता है, न कभी वो त्यागता है। वो कभी सोता नहीं, कभी झपकी नहीं लेता। वो इंसान नहीं कि भूल जाए। सच में प्रभु बहुत अच्छा है। हमें कोई भी भूल सकता है, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स भी भूल सकते हैं, माता पिता भी भूल सकते हैं, लेकिन वो कभी नहीं भूलता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सच में प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता, और वो प्रभु आपके साथ है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। और हम धन्यवाद करते हैं हमारी आंटी के लिए, परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी। और हम उनसे मिले उस दिन जब वो घर जा रहे थे, बहुत अच्छे थे, और परमेश्वर ने उन्हें अच्छा किया है। और जो परमेश्वर में आशा रखता है, उसकी आशा कभी भी अधूरी नहीं रहती। वो आशा को पूरी करने वाला खुदा है। आइए हमारे हाथों को हमारी बहन की ओर करें और धन्यवाद करें। स्तुति धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं। तू बहुत अच्छा खुदा है। हमारी बहन को आशीषों से भरा परमेश्वर, उनको बच्चे दिए खुदा, उनके दोनों बच्चों को, हम उनके पति को हम यीशु के नाम से आशीष देते हैं। और हमारी बहन के ऊपर तेरी अद्भुत अभिषेक पर लंबी आयु को कहते हैं। और हम मांगते परमेश्वर, हम सब मिलकर बादलों में तेरी आराधना कर सके, तेरी स्तुति कर सके, मध्य आकाश में हम तेरे साथ चिपक सके। खुदा तू बहुत अच्छा खुदा है, तू बहुत अच्छा प्रभु है। तू हमें न कभी छोड़ता है, न कभी त्यागता है। हमारी बहन के ऊपर तेरी आशीष को कहते हैं, तेरे अभिषेक को कहते हैं, उनके घर में हर भलाई को कहते हैं। उनके आटे तेल अन्न को आज हम स्पर्श करते हैं यीशु के नाम से। उनके मम्मी के ऊपर, हमारी बहन के ऊपर पूरी चंगाई कहते हैं। परमेश्वर उनका जीवन, परमेश्वर जीवित साक्षी बन सके परमेश्वर। वो चलते फिरते तेरी महिमा कर सके खुदा। जहां कोई उम्मीद नहीं, तू हमारी आशा है, तू हमारी उम्मीद है खुदा। हमारी बहन के ऊपर तेरी आशीष को कहते हुए ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते सुनने पिता, आमीन। एक ना और भी है कि ब्रदर को महाराजा रिसोर्ट में उनको कैशियर का काम भी मिला। वाह वाह, धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। सच में हम सब अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में प्रभु बहुत अच्छा है। हम अद्भुत इन गवाहियों को देखते हैं और देखेंगे। और जो हमारी अनआंसर्ड प्रेयर्स है, वो अनआंसर्ड नहीं है। शायद हमारे लिए अनआंसर्ड हो। परमेश्वर ने दानियल के प्रार्थना को तुरंत किया, उसको पहुंचने में 21 दिन लग गए, लेकिन प्रभु बहुत अच्छा है। वो कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। प्रभु बहुत अच्छा है। और किसी को गवाही देनी है? God has healed one of our little student. The operation was successful this week, and the parents thanked us and thanked the Lord for that the child was able to overcome the operation. When we met the child was laughing and was very happy. And God also healed Ruth from dehydration, and we give all glory to God. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord। प्रभु बहुत अच्छा है। हमारे बच्चे को चंगा किया। रूथ का स्टूडेंट है और उसको ऑपरेशन उनका सक्सेस हुआ। प्रभु बहुत अच्छा है और सच में हम धन्यवाद देते परमेश्वर का। रूथ के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, उसको अच्छा किया, चंगा किया। परमेश्वर बहुत ही महान खुदा है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र 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 आकाशम पृथ्वीचे उत्पन्न करणाऱ्या मान गौशाली किती जन्मापासून भूतळ सुखी ठेवस आणि आजच्या मला प्रार्थना करण्यासाठी त्याच्याबद्दल तुझे लाखो लाख धन्यवाद करतो मी बाप्पा। मी प्रार्थना करते आज चिल्ड्रन्स डे सगळ्या मुलांवर तू आशा दे बाप्पा। जे जे ऑनलाईन प्रार्थना बसले
त्या सगळ्यांना तुझा आशीर्वाद दे बाप्पा. मी प्रार्थना करतो जॉन पॅरेक साहेबांसाठी ऑनलाईन झूम महाराज जे वचन सांगते ते आमच्या ध्यानबुद्धीत राहून दे बाप्पा. मी प्रार्थना करतोय आंटीसाठी आम्हाला ते जे ऑनलाईन झूमवर वचन सांगते ते आमच्या ध्यानबुद्धीत राहून दे बाप्पा. मी प्रार्थना करतो जॉन पॅरेक साहेबांच्या कुटुंबावर तुझा आशीर्वाद ठेव बाप्पा. कैशिलस माझा परिपूर्ण विश्वास आहे बाप्पा. मी प्रार्थना करतो मगर आंटी मगर अंकल साठी तुझी सेवा करीत असताना लागणारी शक्ती सामर्थ्य धीरबुद्धीची आत्मा तुझ्या नावावर ठेव बाप्पा. आमच्या चर्चच्या प्रत्येक मंडळीवर तुझा भरपूर असा आशीर्वाद दे बाप्पा. मी प्रार्थना करतो आमच्या चर्चच्या प्रत्येक शेजारी पाजारींवर तुझा आशीर्वाद दे बाप्पा. इथून पुढचा वेळ काळ समय तुझ्या अतिस्वाधीन करतो. धन्यता नाव प्रभू येशू ख्रिस्त तुझ्या गोड आणि पवित्र नावात म्हणून तो ऐक. आमेन आमेन. Praise the Lord. सब बच्चों को थैंक यू जिन्होंने भी प्रभु को धन्यवाद किया और प्रभु के महिमा के लिए काम किया. आज प्रभु बहुत अच्छा है और आज मैं आपको कुछ मेरा बताने वाली नहीं है, लेकिन आज मैं बच्चों को एक कहानी जरूर बताएगी, एक स्टोरी. Heavenly Father, wonderful God, we come to you, Lord, in your precious Son Jesus' name, Father. We worship you, Lord. We glorify you, Lord. We give you all the glory, honor, and praise of our Father. We thank you, Father, for you are mindful of us, mindful of each and everyone present here, our Father. And also, Lord, for the children, Lord, all our children, Lord. Today we bring them before your throne of grace, our Father. And we ask you, Father, to bless them exceedingly abundantly, much more than they could ask or imagine, our Father. We thank you, our Father, for your word said that your hand is not shortened towards your children, our Father. Today, Lord, we bring each and every child, our Father, before you, Lord. Speak to their hearts, speak to their minds, our Father. Prepare them, Lord, for your coming. Let them know, Lord, that you are the ultimate, Lord, that you are the Alpha, you are the Omega, you are the beginning, you are the end. And Lord, let them also pray, and let each and every one of us pray like David prayed. Create in us a clean heart, O Lord, and renew a right spirit within us, our Father. Yes, Lord, we thank you, our Father, for all our children. We thank you, Lord, that you truly are excelling them in everything that they do, our Father. Above all, Lord, in your kingdom, our Father. You're excelling them in your kingdom for your glory, for your honor, for your praise, our Father. We thank you, Father. We give you all the glory, honor, and praise, Father. Because these are the children, Lord, that you have given us. They are for signs and wonders, Father. Yes. Blessed shall they be coming in, blessed shall they be going out, blessed shall they be everything that they put their hearts and minds to do, our Father. We shall be blessed, our Father. We give you all the glory, honor, and praise, our Father. We ask this prayer in your Son, Jesus' name. Amen. Brother Edwin, please pray according to Proverbs 22:6. Train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. About children as well as parents. Father, we praise you, we glorify you, Lord. We exalt your name up high, Father. Father, we thank you, Lord, for all the great things you have done in our lives, Lord. Father, we thank you, Lord, for all the little ones, Lord. Yes, Father. These children's, Lord, are your gift, Father God. And Lord, they are, your breath is in them, Lord Jesus, Father. Lord, we pray this time, Lord, for all the little ones, Lord, all the children, Lord, as well as their parents, Lord. Father God, we ask you, Lord, that let your wisdom, knowledge, grace, joy, peace, love, let your anointing, let your blessings, Lord, let your word dwell in the parents and the children's heart, Lord. Teach them your way, Lord. And Lord, let them follow your footsteps, Father God. Yes, Father God, let the parents, Lord, dwell in your presence, Father, and teach their little ones, Lord, your glory and your power, Lord. Let them know, Lord, that you are the true and a living God, Lord. Let them grow up under your care, guidance, and wisdom, Lord. Let them taste you, Lord. And let them know, Lord, that you are everything, Lord. You are the first and the last. You are the Alpha and the Omega, Lord. Lord, bring up these children, Lord, as a mighty warrior for your glory, Father God. When they speak, Lord, let them speak about you, Lord. When they serve, Lord, let them serve you, Lord. And Lord, let them have you, Father, in every area of their life, Father God.
I not only pray, Lord, for the children of this church, Lord, but for all the children, Lord, who knows you, Lord, and who wants to know you, Lord. Bless them all, Lord. Bless them all, Lord. Let them all grow, Father, knowing you, Lord, as they own and as the precious Father, as the loving Father, Lord. Thank you, Lord, for our prayers, Lord. You are a prayer answering God, Lord. Have a special blessing upon every little one, Father God. And we give you the glory, honor, and praise for everything, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's all pray. आइए हम प्रार्थना करें। Thank you, Lord. धन्यवाद करते Thank हैं। you, Father. There is none like you, Lord. तेरे जैसा कोई नहीं है खुदा। We bow before you. हम तेरे सामने झुकते हैं परमेश्वर। Lord, you speak through us, Father. प्रभु तू हमारे द्वारा बातें कर। Not me, but you, Lord. मैं नहीं पर तू खुदा। We give ourselves into your hands, Father. हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर। Give us your knowledge, wisdom, and understanding हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ दे खुदा, to do what is right, Lord. वो करने के लिए कि क्या सही है। We love you, Lord. हम तुझसे प्रेम करते हैं परमेश्वर। We thank you for you are the only God who inhabits the praises of your people, Lord. और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तू वो परमेश्वर है जो अपने बच्चों की स्तुति में निवास करता है। There is none like you, Lord. तेरे जैसा और कोई नहीं है परमेश्वर। We give everyone into your hands, Father, हम हर एक को तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर, because you know what is right, what is wrong, Lord. क्योंकि तू जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है। We thank you for showing us another new day, Lord. हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमें नया दिन दिखाया है। Some trust in chariots, some trust in horses, but we trust in your name, Lord. कोई रथों पर तो कोई घोड़ों पर विश्वास करता है, भरोसा करता है, पर हम तुझ पर भरोसा करते हैं खुदा। There is none like you, Lord. तेरे जैसा और कोई नहीं है खुदा। Thank you for you knew us हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमें जानता है। before we were formed in the womb of our mother, Lord. हमारे माँ के गर्भ में जाने से पहले You knew us, Lord. तू हमें जानता था। You knew what we would be. तू जानता था कि हम क्या बनेंगे। You knew where we would land. तू जानता था कि कहाँ पर हम आएंगे। And we thank you for we cannot walk without you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम तेरे बिना चल नहीं सकते। We learn to stand on our knees, Lord. हम हमारे घुटनों पर खड़ा होना सीखे। Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। We can't walk without you holding our hand, Lord. हम तेरे हाथ को बिना पकड़े चल नहीं सकते। We love you, Lord. हम तुझसे प्रेम करते खुदा। Thank you, Father. धन्यवाद करते परमेश्वर। We look to the hills and we wonder where our help comes from. हम पहाड़ों की ओर देखते हैं कि कहाँ से मदद आएगी। And we thank you for we know that our help comes from the Lord. और हम धन्यवाद करते हैं कि हमारी मदद प्रभु की ओर से आती है। We know that when we can't see, you will be our light. हम जानते हैं कि जब हम देख नहीं सकते तब तू हमारी ज्योति है। We know that when we can't walk, you will carry us, Lord. और हम ये जानते हैं कि जब हम चल नहीं सकते तू हमें लेकर उठाकर चलता है। We know that when we lost our fight, you will be our strength. तू जानता है कि जब हमने जंग को, हमारे युद्ध को खो दिया, तब तू हमारी युद्ध को लड़ता है। We know that you will set us a table in front of our enemies, Lord. और हम जानते हैं और धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे दुश्मनों के सामने मेज को बिछाता है। We shall not lack any good, Lord. हमें कोई भी अच्छी और भली बात की घटी नहीं होगी।
because our cup is running over and running over, Lord. क्योंकि हमारा जो प्याला है उमड़ता हुआ बहता है And we shall not want any good, Father. We और- don't need anything, Father. और हमें कोई भी अच्छी और भली बात की घटी नहीं है। We thank you, Father. हम धन्यवाद करते पिताजी, We thank you for you accepted us as your children, Lord. और हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपना बच्चा कह के हमें स्वीकारा। And we thank you for you didn't do any partiality on lavishing your mysteries on us, Lord. और हम धन्यवाद करते हैं कि तूने कोई भी भेदभाव नहीं किया अपने रहस्यों को हमारे ऊपर उंडेलने के लिए। We thank you for you are opening every mystery on time and revealing everything to us, Lord. और हम धन्यवाद करते हैं कि तेरे रहस्यों को सही और नियुक्त किए हुए समय में हमारे ऊपर खुलासा करता है। We thank you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन आमीन। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I don't know whether I should speak like mommy or papa, whether I should teach or preach. मैं नहीं जानती कि मैं मम्मी के जैसा बोलूं या पापा के जैसा, मैं टीच करूं या प्रीच करूं, यानी मैं सिखाऊं या प्रचार करूं। So I will share. इसीलिए मैं सिर्फ बांटूंगी। So we are blessed to be his children. और हम उसके बच्चे हैं, इसीलिए हम आशीषित हैं। We are privileged to be his children. और हम इस मौके को पाए हैं कि हम उसके बच्चे हैं। इस योग्य हम ठहरे हैं कि हम उसके बच्चे कहलाए। I am so honored to be his child. मैं बहुत ही आदर को महसूस करती हूँ क्योंकि मैं उसकी बच्ची कहलाती हूँ। You are the child of the King of Kings and the Lord of Lords. और आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के बच्चे हैं। So what good shall you lack? तो आपको किस भली बात की घटी है? You shall not lack knowledge, आपको ज्ञान की कमी नहीं है, wisdom. बुद्धि की कमी नहीं है, You lack nothing. आपको किसी भी अच्छी बात की घटी नहीं है। You prepare something, a paper, and you write down everything which you lack. और आप एक पेपर उठाइए और वहाँ पे जो आपको घटी है उसको लिख दीजिए। And after writing, you will realize that everything is there. और जब आप लिखना पूरा करेंगे तब आप जान जाएंगे कि सब कुछ आपके पास है। Because he lavishes his mysteries on us. क्योंकि वो अपने रहस्यों को हमारे ऊपर उंडेल देता है Without any hesitation. बिना किसी रुकावट के। He does not say that no, Israel is my lineage, so I will give all the knowledge to that children only. वो ऐसा नहीं कहता कि इज़राइल जो है वो मेरे वारिस है, उनको ही मैं सब कुछ दूंगा, ऐसा नहीं करता। He gives to us Gentiles वो हमें अन्य जातियों को देता है who were once a pagan worshippers. जो अन्य देवताओं की आराधना करते थे, ऐसा एक समय था। But now we know that we are his children, पर अब हम जानते हैं कि हम उसके बच्चे हैं। and that is why he lavishes every knowledge, every mystery, every wisdom on you. इसीलिए वो अपने रहस्यों को, अपने बुद्धि को और अपने हर ज्ञान को आपके ऊपर उंडेल देता है। So what can you give to him? तो आप क्या देंगे उसे? We cannot give anything. हम उसे कुछ भी नहीं दे सकते। He gave our life, the most priceless thing you can ever find in the world. उसने हमें जीवन दिया, और वो जीवन जो आपको दुनिया में अमूल्य है। So we can only have one thing, that is we can have zeal for him. Lord, whatever you tell, I will do. हम एक चीज उसके लिए कर सकते हैं, वो हमारे अंदर उस जोश को जगा सकते हैं। परमेश्वर तू जो चाहिए मुझसे करा। Yes, when many times we fail, we have physical or mental, we are tired physically or mentally many a times.
और बहुतों बार हम फेल हो जाते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हम कर नहीं पाते हैं। But God is good. पर परमेश्वर अच्छा है। Yesterday I became very tired and I came home. कल मैं बहुत थक गई थी और घर पे लौटी। And then I was asking Papa that tomorrow is Children's Day. What will happen? What we have to do? और मैं पापा से पूछ रही थी कल चिल्ड्रंस डे है तो हमें क्या करना है, कैसा होगा, कुछ नहीं किया है। Then Papa said, "Are you ready?" तब पापा ने मुझसे पूछा क्या तू तैयार है? I said, "No, but I will become. I know." तो मैंने पापा को बोला नहीं हूँ तैयार पर मैं हो जाऊंगी तैयार। Because I'm tired, I can't do anything now. मैं थक गई है और अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। But you tell what we have to do tomorrow. मैंने पूछा पापा से पर तू बता हमें करना क्या है कल? Who will sing? Who will pray? Who will do what? और कौन गाएगा, कौन प्रार्थना करेगा, कौन क्या करेगा? Then he's telling that you are zealous for him, then go get up and do your work now. तो उसने कहा कि तू परमेश्वर के लिए जोश रखती है तो उठ जा और उसके लिए काम कर। I said, "No, I am very much tired." मैंने कहा मैं बहुत थक गई हूँ पापा। Because they made me walk from east to west. क्योंकि वो मुझे ईस्ट से वेस्ट तक चलने लगाए। But what I learned was be ready before you want others to be ready. तो मैं आपसे कहती हूँ आप खुद तैयार हो जाओ दूसरों के तैयारी से पहले। Don't depend on others like, yeah, she will do, he will do. ऐसा रुके मत रहो कि वो करेगी, वो करेगा, वो करेगी, वो करेगा, नहीं। But if you're zealous, you yourself know that you will do the work beforehand. अगर आप जोशीले हैं तो आप जरूर समय से पहले काम को पूरा करेंगे। Don't wait for anyone to ask you, sister, brother, you will do something. ऐसा रुके मत रहो कि कोई आपसे पूछे बहन आप ये करेंगे, भाई आप ये करेंगे। But you yourself come friend, can I do this? I want to do this. पर आप आगे बढ़िए और कहिए मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। You yourself should come forward. आप आगे बढ़ना चाहिए। I'm telling this for me also. ये मेरे लिए भी है। Because what can we give to him who gave his life for us? क्योंकि हम उसको क्या दे सकते हैं जिसने हमें अपना जीवन ही दे दिया। Give everything. सब कुछ दे दो। Have a zeal for him. उसके लिए जोश रखो। Zeal is very good. जोश बहुत ही अच्छा है। But it is very, very bad without knowledge. पर वो बहुत और बहुत बुरा है बिना ज्ञान के। Yes, I will dance for God. हाँ मैं परमेश्वर के लिए नाचूंगा। What if you slip without knowing the steps? क्या होगा अगर आपको स्टेप ही नहीं मालूम और आप गिर गए? I will go to small houses and I will share the gospel. मैं छोटे छोटे घरों में जाऊंगा और मैं प्रचार करूंगा। What if you get bashed? ओ क्या होगा जब आपको मार पड़ेगी? You must have the knowledge where to go, what to do and when to do. आपको ये ज्ञान बहुत जरूरी होना चाहिए कहाँ मुझे जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है। What to speak, where to stand, where to sit. क्या बोलना है, कैसा खड़ा रहना है, कब जाना है, कैसे बात करनी है। Zeal is not good without knowledge. जोश जो है बिना ज्ञान के अच्छा नहीं है। Zeal plus knowledge equals to very nice. जोश उसके साथ प्लस जोड़ा जाए अगर ज्ञान को वो बहुत उत्तम हो जाता है। Which knowledge? कौन सा ज्ञान? What knowledge? क्या ज्ञान? We will open Proverbs 19. हम नीति वचन 19 खोलेंगे। Verse 2. दूसरा वचन। Also, it is not good for a soul to be without knowledge. मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। And he sins who hastens with his feet. और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। And he who hurries his footsteps misses the mark.
और जो अपने उतावली से दौड़ता है वो अपने मंजिल को खो बैठता है. You got saved, you got baptized. I will go and tell everyone. आप बपतिस्मा लिए, आप उद्धार पाए और मैं जाऊंगा और सबको No, बताऊंगा. no, wait. नहीं, आप रुकिए. First learn. Whose gospel are you telling? आप सीखिए कि किसका सुसमाचार आप बता रहे हैं. Why are you telling his only? और उसका ही क्यों बता रहे हैं सुसमाचार. So don't hurry. तो आप जल्दबाजी मत कीजिए. Don't have zeal without knowledge. और जोश जो है वो बिना ज्ञान के मत करिए, Or else you will miss the mark. या तो आप अपनी मंजिल को खो बैठेंगे. So don't hurry. तो इसीलिए आप जल्दबाजी मत कीजिए. You will say, then what now? Everything is going to finish. How everyone will know about Jesus? ओ आप सोचेंगे तो कैसा, अब तो सब कुछ खत्म होने वाला है और अब यीशु के बारे में सबको कैसे पता We चलेगा. need to hasten. We need to go fast and tell everyone. हमें जल्दबाजी करनी है, उतावली करनी है, सबको उसका सुसमाचार सुनाना But है. do you have knowledge? पर क्या आपको ज्ञान है? Because this is the time, end times, God is lavishly He is giving His knowledge, wisdom freely. He opened everything. क्योंकि ये अंत समय है. इस अंत समय में उसने अपने रहस्यों को खोल दिया है, उंडेल दिया है, आपके ऊपर खुलासा करके रखा है. So zeal is very dangerous without knowledge. और जोश जो है बहुत ही खतरनाक होता है बिना ज्ञान के. We might end up in a bad state. और ऐसा हो सकता है कि उसका अंत बहुत ही बुरा हो. Then you all will wonder, why didn't God save me? तब आप सोचेंगे कि परमेश्वर ने मुझे क्यों नहीं बचाया. I was zealous for Him. मैं इतना जोशीला था उसके लिए. But He already told you, listen to me first. इसीलिए उसने पहले से आपको बोला मेरी और ध्यान दो, मेरा सुनो. We see in Romans 10:2. हम रोमियो का पत्र उसका 10वां आयत उसका दूसरा वचन को देखेंगे. For I bear them witnesses that they have a zeal for God. क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, But not according to knowledge. परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं. We all have zeal, हम सबों के पास जोश है, but we don't have knowledge. पर हमें ज्ञान नहीं है. We need to ask God to tell us what do we need, what knowledge should we have for having that zeal. तो हमें परमेश्वर से मांगना है कि वो जोश के लिए मुझे क्या ज्ञान की जरूरत है. But I think sometimes I question, are we zealous? Are we zealous? बहुतों बार मैं ये सवाल करती हूँ कि क्या हम जोशीले हैं क्या. Because everything is online, I cannot hear your cheer, I cannot hear your amen, I cannot hear your hallelujah, I cannot see your smiles, I cannot hear your claps. क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, मैं आपको खुश होते हुए देख नहीं सकती, आपके आमीन को सुन नहीं सकती, आपके हालेलुया को नहीं सुन सकती, आपके हंसने को सुन नहीं सकती, आपके मुस्कुराहट को देख नहीं सकती. सब कुछ ऑनलाइन है. But I know one thing, that God has touched your hearts and He will give you that zeal and give you that fire and give you that burning to serve Him in this end times. पर मुझे विश्वास है और मैं जानती हूँ कि परमेश्वर ने आपको छुआ है और इस अंत समय में परमेश्वर ने आपको वो जोश दिया है प्रभु के प्रचार के लिए. We must have knowledge of what we are doing. हमें जरूरी है वो ज्ञान, वो बुद्धि को प्राप्त करना, Who we are serving. कि किसको हम सेवा कर रहे हैं, In what way should we be serving? और किस तरीके से हम सेवा करना चाहिए. Why God called us? परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया, With what purpose He called us? और उसका मकसद क्या है मेरी बुलावट के लिए. With what purpose He saved us, He chose us. और किस मकसद से उसने मुझे चुना है. We know the example of Paul.
हम पौलुस के उदाहरण को जानते हैं। We'll open Acts 26 verse 9. हम प्रेरितों के कार्य 26वां अध्याय और 9वां वचन। Paul is saying, पौलुस कह रहा है, Indeed, I myself thought I must do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth. 9. मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। This I also did in Jerusalem, और मैंने यरूशलेम में भी ऐसा ही किया। and many of the saints I shut up in prison, बहुत से पवित्र लोगों को बंदी गृह में डाला, having received authority from the chief priests. और प्रधान याजकों से अधिकार पाया, And when they were put to death, I cast my vote against them. और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। I punished them often in every synagogue and compelled them to blasphemy. हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था। And being exceedingly enraged against them, I persecuted them even to foreign cities. यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। Paul thought he was doing everything for God. पौलुस ने सोचा कि सब कुछ वो जो कर रहा है वो परमेश्वर के लिए कर रहा He was है। extremely zealous. बहुत ही जोशीला हो गया था। Here he says in verse 10, many of the saints I shut up in prison, having received authority from the chief priests. और 10वें वचन में वो कहता है, और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदी गृह में डाला। He received authority from chief priests also. और प्रधान याजकों का अधिकार भी उसने पाया। He thought he was not doing anything wrong. He was doing everything legally. और वो सोच रहा था कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा है और सब कुछ नियम के अनुसार कर रहा है। Everything according to law. हर एक चीज व्यवस्था के अनुसार। But he forgot who made the law. पर वो भूल गया कि इस व्यवस्था को बनाने वाला कौन है। He forgot. He didn't know. He didn't have the knowledge who was that God. और ये उसे ज्ञान नहीं था कि वो परमेश्वर कौन है। He thought these people are saying about this Jesus of Nazareth. I don't know. I don't care because I know one God and I serve Him only. And I will put this all blasphemers in prison and kill them. वो सोचता था कि ये यीशु नासरी कौन है। मैं तो एक ही परमेश्वर को जानता हूँ। वो उन्हें बहुत सताता था और इतना कि यीशु की निंदा भी करवाता था। Paul was the student of Gamaliel. पौलुस जो था वो गमालिएल का शिष्य था। Paul learned and was trained under the teacher of Pharisees. और पौलुस उसके नीचे सीखा, फरीसीस का शिक्षक था। Paul knew God. पौलुस परमेश्वर को जानता था। He learned from the highest teacher of all. और उसने सबसे उत्तम शिक्षकों से सीखा। Many a times we think we are in the Lord from so long period. बहुत बार हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर में बहुत सारे समय से हैं। So we have all the knowledge that we can receive. और हमें वो सब ज्ञान मिल गया है जो हमें मिलना चाहिए था। We have gone to the greatest teacher. We have heard every sermon. We have listened. We have noted down. We have done everything possible to learn and gain the knowledge of God. और हमने हर जो बड़े बड़े शिक्षक हैं, बहुत बड़े बड़े प्रचारक हैं, उनका प्रचार को सुना है, अच्छे से हमने डायरी में लिख के रखा है, हमें सब कुछ ज्ञान है, हम सब कुछ जानते हैं। But did you ask God that is this enough? पर क्या आपने परमेश्वर से पूछा कि ये जो मैंने किया है, लिख के भी रखा है, क्या ये काफी है क्या? Did you ask him that do you want to tell me more? क्या हमने ऐसा पूछा परमेश्वर से, क्या तू मुझसे और बातें करना चाहता है? Please reveal
more mysteries and knowledge to me, God. और हे परमेश्वर मेरी और रहस्यों को खोल परमेश्वर। No, our zeal finished there only. नो, हमारा जोश जो है वहीं पर खत्म हो We जाता attained है। all the knowledge of this world, of this world who we attained all the knowledge that the world could give us. और हम वो पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं जो दुनिया समझाती है, हमें देती है। But we didn't ask the one who gave that knowledge to those people. पर हम उससे मांगना भूल ही जाते हैं जो ज्ञान, जो बुद्धि उसने उन लोगों को दी है। We are his children. हम उसके बच्चे हैं। Then why are we not thinking that he is our father? तो हम ये क्यों सोचते नहीं कि वो हमारा पिता है? Why are we thinking that that person is the child of God? तो हम ये क्यों सोचते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो परमेश्वर का बच्चा है? So I will listen to him. तो मैं उसका सुनूंगा। So I will listen to him. मैं उसका सुनूंगा। Why are we not thinking I can listen to him directly? तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम जो है सीधा उससे सुनेंगे? We must have zeal plus knowledge. हमें जोश और ज्ञान, बुद्धि होना बहुत जरूरी है। And there is only one person who can give us all the knowledge of this, all the knowledge you cannot even imagine which is there in this world. और एक ही व्यक्ति है जो आपको वो ज्ञान बुद्धि दे सकता है, वो ज्ञान जो आप सोच और समझ नहीं सकते। God has chosen you परमेश्वर ने आपको चुना है as his child. उसका बच्चा करके। So you can ask him. तो आप उससे मांग सकते हैं। He will tell you from where will you get and what will you get, and if he wants to tell you himself, he will tell. वो आपको बताएगा कि आपको ये कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा, या तो वो खुद आपको देगा। Paul did not have knowledge. पौलुस को तब ज्ञान नहीं था। He had knowledge. उसके पास ज्ञान था। He took that knowledge from Gamaliel. उसने गमालिएली से वो ज्ञान प्राप्त किया। But he did not ask the God. पर उसने परमेश्वर से नहीं मांगा। The God whom Gamaliel served. वो परमेश्वर जिसकी सेवा गमालिएली करते थे। The God whom he served. वो परमेश्वर जिसकी वो सेवा करता था। He thought that people who were preaching about Jesus were blasphemers. और वो सोच रहा था कि जो लोग यीशु का प्रचार करते हैं वो परमेश्वर की निंदा करते हैं। He gave punishment to each and everyone. He did not leave even one person. उसने हर एक ऐसे व्यक्ति की जो यीशु नासरी के पीछे जाता था उन सबों को सजा दिलाई और दी, और एक को भी नहीं छोड़ा। Because he didn't know. क्योंकि वो नहीं जानता था। No Jesus, no knowledge. No Jesus, no knowledge. KNOW, no Jesus. यीशु को जानो, no knowledge. ज्ञान को प्राप्त करो। NO, no Jesus. यीशु नहीं, no knowledge. तो कोई ज्ञान नहीं। So we know that beforehand only. तो ये चीज तो हम पहले से ही जानते हैं। So Paul did not have knowledge. पौलुस को ज्ञान नहीं था। And because of that, many unwanted things happened. और उसके कारण बहुत सारी अनचाही चीजें हुई। Many servants of God were killed. परमेश्वर के बहुत सारे दास मारे गए। Many were persecuted. बहुत सारों को सजा दी गई, This all Paul सताया only गया। did. ये सब पौलुस ने किया। In his zeal without knowledge. उसके जोश में बिना किसी ज्ञान के। And then we know the story how God gave him the knowledge, how God saved him. और हम सब जानते हैं कि पौलुस को कैसे परमेश्वर ने ज्ञान दिया, कैसे बचाया उसे। And how God said that why are you persecuting me and all. और कैसे परमेश्वर ने उससे कहा, प्रभु ने उससे कहा, क्यों तू मुझे सता रहा है। And then Paul realized, तब पौलुस जान गया, got the knowledge that Jesus is God. तब उसे वो ज्ञान मिला कि यीशु ही प्रभु है। He had zeal. उसको
जोश था, but no knowledge. ज्ञान नहीं था। Zeal without knowledge is very harmful. जोश बिना ज्ञान के बहुत ही नुकसानकार है It can many unwanted things can happen. और बहुत सारी अनचाही चीजें हो जाती है Many things can happen which God didn't intend to happen. और बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है जो परमेश्वर नहीं चाहता है। So again, there's one more example about Moses. मैं एक और उदाहरण आपको देगी मूसा। We'll open Acts 7th chapter 23 verse onwards. प्रेरितों के कार्य 7वां अध्याय 23 वचन से। And when he was full 40 years old, जब वो 40 साल का था, it came into his heart तब उसके हृदय में आया to visit his brethren, the children of Israel. कि उसके भाइयों के पास जाए जो इज़राइल के बच्चे थे। Moses learned every wisdom of Egyptian, मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई and then he came to visit his brethren, the children of Israel. तब वो अपने भाइयों के पास, इज़राइली भाइयों के पास भेंट करने आया। And seeing one of them suffer wrong, उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर he defended him उससे बचाया and avenged him that was oppressed और मिस्री को मारकर and smote the Egyptian. सताए हुए का पलटा दिया। So he killed the Egyptian and buried him. उसने मिस्री को मारा, उसको गाड़ डाला। He was zealous to rescue, save his brethren. वो जोशीला था अपने भाइयों को, इज़राइली भाइयों को बचाने के लिए। It's written, I had only that. And the next day he thought that if he will not save his brethren, then who will save? When we read further, we will come to know. उसको अगर वो नहीं बचाएगा तो उसके भाइयों को कौन बचाएगा? आगे जब हम पढ़ते हैं ये सब लिखा So he है। was zealous, but he didn't have knowledge that when to save, where to save. और वो नहीं जानता था कब उन्हें बचाना है, किधर बचाना है, कैसे बचाना है। We have read in the Bible there is a time for everything. हमने बाइबल में पढ़ाया है कि चीज का समय नियुक्त है, But that time God will tell us. पर वो समय परमेश्वर हमें He बताएगा। will give us the knowledge. वो हमें ज्ञान देगा। You need to be serious, and when he tells you to go, you should go. आपको जोशीला रहना है। अगर आपको वो कहता है जाओ, तब आपको जाना है। Until then, we have to prepare ourselves. तब तक हमें तैयारी करनी है। Then when he says to go, then we should not say that we are not prepared. और जब हमें वो कहता है कि जाओ, तब हमें ये नहीं कहना है कि हम तैयार नहीं है। We must learn how to discern. हमें ये सीखना है कि कैसे हमें पहचानना है। I don't have discernment, मुझे पहचानने की खूबी नहीं है, but if we ask God, He will give us. पर अगर हम परमेश्वर से मांगे तो वो जरूर देगा। He pours out His knowledge and lavishes His mysteries on us. वो अपने ज्ञान को हमारे ऊपर और रहस्यों को खोलकर उंडेलता है हमारे ऊपर। So now we see that Moses was 40 years old. और अब हम देख सकते हैं कि मूसा 40 वर्ष का हुआ। After he buried that Egyptian, he fled from there. और उस व्यक्ति को जिसको उसने मारा, मिस्री को, उसको गाड़ने के बाद भाग गया वहां से। And then he went into the wilderness. और वो जंगल में गया। Another 40 years old. और 40 years. 40 साल के लिए। And then when he was prepared, और जब वो तैयार हो गया, when God gave him all the knowledge in that wilderness in 40 years, उस रेगिस्तान में जब परमेश्वर ने उसे 40 साल सिखाया, he came back to Egypt. वो मिस्र में वापस आया। So if we calculate, he became 80 years old when he came back. तो हम अगर उसे जोड़े तो वो 80 साल का हो गया जब वो मिस्र में वापस आया। And now when he came back, he had zeal and knowledge. He had both things. और जब वो मिस्र में लौट कर आया तब उसके पास जोश भी था और ज्ञान भी था। And that is why he was able to fulfill God's plan in a right way.
इसीलिए वो परमेश्वर के योजना को सही रीति से पूरा कर सका। Before 40 years also he wanted to fulfill God's plan. 40 साल पहले भी वो परमेश्वर की योजना को पूरा करना चाहता था, But he did not know the right way. पर उसे सही मार्ग नहीं दिखाई दिया। To know the right way, he spent another 40 years only with God. और परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए और 40 साल वो सिर्फ परमेश्वर के साथ गुजारा। So we see that his zeal for God was still fresh, still new. और हम देख सकते हैं 40 साल बाद, यानी जब वो 80 साल का हुआ, तभी भी उसका जोश बहुत ही ताजा और नया था, Still strong, फिर भी मजबूत था, same as before. जैसे पहले था। But now it was armored with knowledge. पर अब वो हथियार बंद हो गया, हथियारों से तैयार हो गया उस ज्ञान के। And when your zeal is armored with knowledge जब आपका जोश हथियारों के साथ होता है, of God, परमेश्वर के हथियारों के साथ, knowledge of God, परमेश्वर का ज्ञान, no power can pull you down. कोई भी सामत आपको नीचे खींच नहीं सकता। Nothing can stop you from doing what God had planned for you to do. कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है परमेश्वर के प्लान को पूरा करने के लिए। So we see that 80 years old he came to fulfill God's plan. तो हम देख सकते हैं 80 वर्ष का जब वो हुआ, तब वो परमेश्वर के योजना को पूरा करने आया। Here we become old in 30 or 40 years only. और यहाँ पर हम 30 और 40 साल में ही बुढ़े हो जाते हैं। So we must not say, oh, we are old, we cannot come, we cannot go there, I can't do this, I'm tired, I become tired. God will give you strength. If you have the zeal, God will give you strength. हम ये नहीं कहना चाहिए ओ 30-40 साल में ही हम बूढ़े हो गए, हम आ नहीं सकते, हम ये कर नहीं सकते। जोश रखो परमेश्वर के काम के लिए। If you have the zeal, अगर आपको जोश है, God will give you the strength. परमेश्वर आपको सामर्थ भी देगा। And with his knowledge, he will tell you whether to go or not. और उसके ज्ञान के मुताबिक वो आपको बताएगा कि आपको जाना चाहिए या नहीं। We cannot go to house church, it is locked down. हम हाउस चर्च नहीं जा सकते, लॉकडाउन है। I'm not telling you to come. मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप आइए। Ask God the knowledge that whether to go here or to go there or to speak there or to not to speak there. परमेश्वर से पूछिए कि क्या मैं वहां जाऊं, नहीं जाऊं, क्या बोलूं, क्या नहीं बोलूं। If you have the zeal, God will give you the knowledge. अगर आपके पास जोश है तो परमेश्वर आपको ज्ञान और बुद्धि से भरेगा। So Moses came back to Egypt. मूसा अब मिस्र में आ गया। We should not say now he came from a safe zone to dangerous zone. अब वो सेफ सलामती की जगह से खतरनाक जगह पर आया। We must not say that we cannot go in the place of danger. हमें ये नहीं कहना चाहिए इस खतरे की जगह पे मुझे नहीं जाना है। We cannot. If God told us to go, we should not say this. अगर परमेश्वर ने हमसे कहा तो हमें नहीं कहना चाहिए। We should not tell that we cannot go to the place where we were once condemned. ऐसा नहीं कहना चाहिए कि उस जगह पर मैं नहीं जाऊंगा जहां पर मुझ पर दोष लगाया गया। We must go there because God told us to go. हमें वहां जाना चाहिए क्योंकि हमें परमेश्वर ने कहा है। And if God told you to go, अगर परमेश्वर ने आपको कहा है जाने के लिए, then nothing is dangerous because he has a right way prepared for you where you should go, and he has given you the knowledge. He has armored you with his knowledge. तो अगर वो खतरे के जगह में भी जाने को कहता है तो हमें जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने पहले से वहां पे आपके लिए मार्ग बना के रखा है। We need to know that the God whom we are serving,
क्योंकि हम जानना चाहिए जिसको हम सेवा करते हैं, We need to know why we are serving that God. और उस परमेश्वर को हम क्यों सेवा करते हैं और वो जानना चाहिए। And then only we will never be tired. और तभी ही हम थकेंगे We नहीं will never be weary. और चिंता नहीं करेंगे, We will wait on Him. और हम उस पर रुके रहेंगे। They who wait on the Lord shall renew their strength. वो जो परमेश्वर पे रुके रहते हैं वो अपने सामर्थ्य को तरोताजा करते They हैं, shall mount up on wings like an eagle. और वो उकाब के परों को प्राप्त करते हैं, And they shall soar. और वो उड़ेंगे, They shall walk and not be weary. और वो चलेंगे थकेंगे नहीं, They shall run and not faint. और वो दौड़ेंगे और घिरेंगे नहीं। Amen. आमीन। If you have that zeal, you will run, you will not fall. और आप दौड़ेंगे, गिरेंगे नहीं। So, you know, Amma, आप जानते हैं अम्मा को, she walks very slowly. वो बहुत ही स्लो चलती है, And because of her, I also walk slowly. और उसके कारण मैं भी स्लो चलती है। So she used to get tired very easily when we used to come in church offline. ऑफलाइन जब हम चर्च में ईस्ट में आते थे तभी वो थक जाती थी, We had to move out of the house half an hour before और हमारे घर से आधा घंटा पहले निकलना पड़ता था। to climb the slope 10 minutes. हमारे घर से बाहर रोड तक जाने के लिए 10 मिनट, To cross the station stairs और 15 to 20 minutes. स्टेशन के सीढ़ियों को पार करने के लिए 15 से 20 मिनट। So still she used to come. फिर भी वो आती थी। I remember when we were 4 only in the church, still she never said that no one is coming in church, so I will rest today. और ऐसा समय था जब सिर्फ हम 4 ही रहते थे कलीसिया में, तभी भी मैंने कभी उससे सुना नहीं कि आज मैं घर पे ही आराम करती She हूँ। had that zeal. उसके पास वो जोश था। Even we used to think that I don't know how she's worshipping so in a so interested way. और कभी कभी हम ये सोचते थे कि कैसा वो बहुत ही रुचि लेकर परमेश्वर की आराधना करती है, Even though no one was there, जबकि कोई भी नहीं रहता था। but she came for no one. She came for God. पर ऐसा था कि वो किसी के लिए आई नहीं, पर परमेश्वर के लिए आई। She used to come still. वो फिर भी आती थी। So you might remember Didi. आप दीदी को जानते हैं। So even to the point of dying, she used to come to church. वो मरने तक भी वो कलीसिया में आई। She came. वो आई, She came. वो आई, And she was lying on the bench. और वो बेंच पर लेट गई। She was so sick. वो इतनी और इतनी बीमार थी, Still she came and was lying on the bench. फिर भी वो आई और बेंच पर लेट गई। Because you and I know our rest, we can rest only in His bosom. क्योंकि आप और मैं जानते हैं कि हम सिर्फ उसके ही बाहों में आराम कर सकते हैं। We know our Ajji also. हमारी अज्जी को भी हम जानते She हैं। sits every time in church. वो हमेशा कलीसिया में बैठती है। I'm so happy. मुझे बहुत अच्छा लगता है। So even to the point of death, हमें हमारे मरने तक भी we must have zeal. हमें वो जोश रहना चाहिए। But always remember, we must have knowledge also. पर ये हमेशा याद रखिए कि हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। We all know about Jephthah. हम सब जेफ्ता के बारे में जानते हैं। We'll open Judges, हम न्यायों के किताब को खोलेंगे, 11th chapter. 11 अध्याय। Now Jephthah the Gileadite was a mighty man of valor, and he was the son of an harlot, and Gilead begat Jephthah. First verse. यिप्तह नामक गिलादी, न्यायों का पुस्तक 11 अध्याय 1 वचन। यिप्तह नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था और वह वेश्या का बेटा था, और गिलाद से यिप्तह उत्पन्न हुआ था। So he was a son of a prostitute. वो वेश्या का बेटा था। His father was a king. उसका पिता
राजा था। And when his king died, when his father died, और जब उसका पिता मर जाता है, everyone rejected him. सब ने उसे नकार दिया। Everyone didn't want to give him the inheritance. और कोई भी उसे विरासत देना नहीं चाहता था। So they removed him, like he went away then. और उसे सबने निकाल दिया और वो चला गया। Then Jephthah fled from his brethren and dwelt in the land of Tob. और तब यिप्तह अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा। And then we know he gathered few people and became leader of them. और हम सब जानते हैं उसने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उनका अगुवा बन गया। And then we know that how Israel was in trouble and they wanted someone to fight for them. और तब हम जानते हैं कि कैसे इज़राइल जो था वो बहुत ही तकलीफ में आ गया और वो किसी न किसी को चाहते थे कि उससे युद्ध करे। So they went to Jephthah. तो वो यिप्तह के पास गए and they told him और उससे कहा to come and be their king and judge. चलकर हमारा प्रधान हो जा। Yeah, so we know that he came. और हम जानते हैं कि वो आया। He came despite of the fact that they rejected him. और वो आया वापस लौटकर जबकि वो जानता था कि वो उससे बैर रखते हैं। And then we know how about his vow that he made to God and his victory in the battle. और वो भी हम जानते हैं कि कैसा परमेश्वर के साथ उसने वायदा किया और कैसे वो युद्ध जीता। Verse 30 वचन। And Jephthah vowed a vow unto the Lord and said, If thou shalt without fail deliver the children of Ammon into mine hands. और यिप्तह ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निस्संदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, then it shall be that whatsoever cometh forth of the doors of my house to meet me, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे बेटे के लिए मेरे घर के द्वार से निकले, when I return in peace from the children of Ammon, जब मैं अम्मोनियों से कुशल से आऊं, shall surely be the Lord's, and I will offer it up for a burnt offering. तब मैं यहोवा की और होम बलि करके चढ़ाऊंगा। So we know that Jephthah came from pagan worshipping. और हम जानते हैं कि यिप्तह जो था वो अन्य देवी देवताओं की उपासना करता था। And now he is serving the Lord. पर अब वो यहोवा की उपासना करता And था। then he tells that I will offer up for a burnt offering whosoever comes first, and whosoever I see first, whosoever comes to meet me first. तब वो यहोवा से वायदा करता है कि जब वो अम्मोनियों के पास से कुशल से आए तो कोई मेरे बेट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले, वह यहोवा का ठहरेगा। You need to know that which God you are serving. आपको ये जानना जरूरी है कि आप किस परमेश्वर की उपासना करते हैं। Does he accept human sacrifices? क्या वो मनुष्य की बलि को चाहता है? No. नहीं। God of Israel, he himself said, you should not worship me like with human sacrifices. और इज़राइल के यहोवा ने कहा, खुद कहा कि मनुष्य की बलि नहीं चढ़ाना। And then we read ahead as he goes, his only daughter, the one and only daughter, he has only one daughter and she comes running to meet him first. और जब हम आगे पढ़ते हैं तो ये है कि उसकी इकलौती बेटी उसके पास दौड़ कर आई पहले। And then in verse 35 he says, Alas, my daughter, thou hast brought me very low. उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी। And thou art one of them that trouble me. और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई। For I have opened my mouth unto the Lord, and I cannot
go back. क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। Will he really offer his daughter to God? क्या वो सच में अपनी बेटी को परमेश्वर के पास होम बलि करेगा? That God who does not accept human sacrifice. वो परमेश्वर जो किसी मनुष्य की बलि नहीं चाहता। He knew वो जानता the था God परमेश्वर who को he is serving. जिसकी वो सेवा करता था। He had the zeal, उसको जोश था, he had the knowledge. उसको ज्ञान भी था। But many of times we get confused and think that he will sacrifice his daughter. और बहुतों बार हम ये समझते हैं कि वो अपने बेटी को होम बलि कर दिया। In 37 verse, and she said unto her father, let this thing be done for me. और 37 वचन में लिखा है कि मेरे लिए यह किया जाए। Let this thing be done for me. ये चीज मेरे लिए किया जाए। Without hesitation, she obeyed her father. बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने पिता का कहना माना। And she obeyed her father. और उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन And then किया। when she does what she told her father that she will do, और वो वैसा करती है जैसा उसने अपने पिता से कहा। and when she comes back, और जब वो लौट कर आती after है 2 months, 2 महीने के बाद, in 39th verse, 39 वचन में, and it came to pass at the end of 2 months that she returned unto her father, 2 महीने बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई, who did with her according to his vow which he had vowed. और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया। Yet this, when we read this, we think, oh, he sacrificed his daughter. जब हम ये पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उसने अपने इकलौती बेटी को होम बलि But चढ़ा next, दिया। when we read, पर जब हम पढ़ते हैं, and she knew no man. उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी न देखा था। That means, did he sacrifice his daughter? क्या इसका मतलब है उसने अपने बेटी को होम बलि चढ़ा दिया? No, he did not give her as a burnt offering. नहीं, उसने अपनी इकलौती बेटी को होम बलि नहीं चढ़ा दिया। He sacrificed her for her whole life to do the will of God of Israel. पर उसने अपने बेटी को दे दिया कि वो हमेशा हर वक्त इज़राइल के परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। And she knew no man. और वो किसी पुरुष को नहीं जानी। So God is so good. परमेश्वर बहुत अच्छा है। We have to learn that we must be obedient. हमें ये सीखना है कि हमें Like आज्ञा का पालन करना चाहिए। Jephthah's daughter. जैसे यिप्तह की बेटी ने किया। They came from pagan worshipping. वो देवी देवताओं को मानने वाले थे। He didn't grow up worshipping. He came from pagan worshipping and still he was ready to sacrifice his daughter. वो अन्य देवताओं को मानने वाले परमेश्वर को वादा पूरा करने के लिए आए। He served God of Israel. उसने इज़राइल के परमेश्वर की सेवा Jephthah की। was rejected by his brethren यिप्तह जो है अपने भाइयों से नकारा गया because he was a prostitute son. क्योंकि वो वैश्या का बेटा था। He was rejected, neglected, avoided. वो नकारा हुआ था, उसे कोई भी इज्जत नहीं देता था। David, दाऊद, he was a shepherd. वो चरवाहा था। Samuel went to anoint for kingship. शमूएल राजा को अभिषेक करने गया। David's father did not even call him. दाऊद के पिता ने उसे बुलाया भी नहीं। He showed his all other sons who were strong, built for fighting against enemies. और उसने दाऊद के पिता ने उसके अन्य दूसरे बेटों को दिखाए जो योद्धा थे, बहुत बड़े बड़े योद्धा। Then he told, where you have one more son, where is he? तब उसने कहा क्या तुझे एक और बेटा भी है, वो कहाँ है? He is looking after the sheep. वो कहता है कि वो तो भेड़ों को चरा रहा है। And
God chose the neglected, rejected, avoided. और परमेश्वर ने जो नकारा हुआ था, जो रिजेक्ट किया हुआ था, जिसका कोई मूल्य नहीं था, उसे उसने चुना। I think David might know that Samuel is going to come in house and he is going to anoint for kingship. और मुझे लगता है कि दाऊद तो पक्का जानता था कि शमूएल आएगा और मेरे भाइयों में से एक का अभिषेक करेगा राजा के लिए। But he did not leave his sheep and come. पर उसने अपने भेड़ों को छोड़कर वो घर पर नहीं आया लौट के। He also might have the feeling, "No, I also want to become king." तो वो उससे भी शायद होता होगा कि हो सकता है मैं भी राजा बन जाऊं। But he was doing what his father told him to do. पर वो वही कर रहा था जो उसके पिता ने उसे आज्ञा दी थी। He was obeying his worldly father. वो दुनिया के पिता की आज्ञा का पालन कर रहा Be था। faithful in little and he will bless you with more. थोड़े में विश्वसनीय रहो तो बहुतायत वो आपको देगा। And because he was obeying, he was called. वो आज्ञा का पालन कर रहा था, इसीलिए वो आया। God उसे can choose बुलाया गया। anyone. परमेश्वर किसी को भी चुन सकता है। We were rejected, we were looked down, we were neglected. हम जो थे नकारे हुए थे, हमें कोई पहचानता नहीं था, हम नकारे हुए थे। But he still chose us. पर फिर भी उसने He still चुना। anointed us. फिर भी उसने हमारा अभिषेक किया। Have knowledge and zeal for the house of the Lord. परमेश्वर के घर के लिए ज्ञान और जोश रखो। Worship him with a true heart. पूरे सच्चे हृदय के साथ उसकी आराधना करो। Don't think we'll come directly to listen to the word. ऐसा मत कहो कि सीधा हम प्रचार को सुनने आएंगे। Because we can give him the time of giving. क्योंकि जब देने का समय है हमें देना चाहिए। We must come and worship him in spirit and truth. हम आकर उसकी आराधना करना चाहिए सच्चाई और आत्मा के साथ। In John 4th chapter, यूहन्ना 4 अध्याय verse 23 and 24 says, 23 और 24 वचन। But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and truth. परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिससे मैं सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। For the Father seeketh such to worship him. क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। When we become like children and worship him in spirit and जब truth, हम बच्चे होकर आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, he loves us. He loves that worship. वो उस आराधना से प्रेम करता है। And that worship he will accept in a pleasing way. और वो प्रसन्न चित्त से, वो प्रसन्न मन से उसको ग्रहण करता है। He will accept us. वो हमें ग्रहण He will करेगा। accept our offering. वो हमारे अर्पण को ग्रहण करेगा। Ultimately, we must have zeal. तो अंत में मैं ये कहूंगी कि हमें जोश होना We चाहिए, must have knowledge. हमें ज्ञान होना चाहिए। We are chosen and we are not forsaken. हम चुने हुए हैं और हमें उसने भूल नहीं दिया है। We are what he says we are. जो वो कहता है वो हम हैं। We are his. हम उसके हैं। And he is for us and he is not against us. वो हमारे लिए है, हमारे विरुद्ध नहीं है। So, God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। We greet you in Jesus' name. हम आपका स्वागत करते हैं यीशु के नाम से। Thank you for your patience. आपके धीरज के लिए धन्यवाद। Thank you for your presence. धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। And truly we have seen, heard about zeal and knowledge. और हमने जोश और ज्ञान के बारे में सुना। I believe because we are in the beginning of the end. और मैं विश्वास करता हूँ कि इस अंतिम समय के शुरुआत में हम हैं। And God wants us to be filled with the knowledge of God. और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के ज्ञान से भर जाएं। Sadhana said, I can't come today, I can't attend. साधना ने कहा आज मैं अटेंड नहीं कर सकती, But praise God, पर प्रभु की स्तुति हो। God opened a door for Sadhana. परमेश्वर ने साधना के लिए दरवाजा खोला And she trusted that God will heal her.
और उसने विश्वास किया है कि परमेश्वर उसे चंगा The करेगा। reason of her trust is she is having a knowledge that Jesus was wounded for sadhana. और इसका कारण ये है उसके कि ज्ञान का कारण उसके ये है। ज्ञान का कारण ये है क्योंकि वो जानती है कि यीशु मसीह साधना के लिए कुचला गया। Amen. आमीन। If you have knowledge, अगर आपको ज्ञान है you will succeed. तो जरूर आप उसको पार कर उन्नति देंगे, प्राप्त उन्नति करेंगे। प्राप्त करेंगे। God is about to do many wonders and miracles through the church. और कलीसिया के द्वारा परमेश्वर बहुत ही अद्भुत काम Be करेगा। like Amma, ready to walk anywhere. और अम्मा जैसा बनिए, कहीं भी चलने के लिए तैयार रहिए। Be like Dayabai Tai. और दयाबाई ताई जैसा रहिए। Even though in her old age she is ready to come anywhere. उनके इस बुरी अवस्था में भी वो कहीं पर भी आने के लिए रेडी हो जाती Be है। like Didi. दीदी जैसा बनिए। That even though she came from Hindu background, जबकि वो हिंदू बैकग्राउंड से आई, she knew Jesus Lord is Savior. वो जानी कि यीशु ही प्रभु उद्धार करता है। Amen. आमीन। Your knowledge, आपका ज्ञान if it is not right, वो सही नहीं है then it will puff up. तो वो फूल जाता है। Many a times we heard knowledge puffed up, but love builds. बहुतों बार हमने सुना है कि जो ज्ञान है वो फुगा देता है। फुगा देता है, पर प्रेम जो है वो बनाता I है। love to add to it और मैं उसमें और जोड़ना चाहता that हूँ, knowledge in a right way जो ज्ञान सही तरीके से है will bring love and zeal in your life. वो आपके जीवन में प्रेम और ज्ञान को लेकर आएगा। Even though you don't have power inside you, जबकि आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, still you will come to the Lord because you have a knowledge. पर फिर भी आप प्रभु के पास आएंगे क्योंकि आपको ज्ञान है। That man at that lake, वो व्यक्ति जो तालाब की ओर बैठा था, he had a knowledge. उसके पास ज्ञान था। There comes an angel and moves that lake, and if I will be the first person and I will be healed. वो जानता था कि स्वर्गदूत आता है और तालाब के पानी को हिलाता है, अगर मैं पहला व्यक्ति उसमें कूदूंगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। And truly, according to his perfect knowledge, he got a healing. और सच में उसके परिपूर्ण ज्ञान के अनुसार उसे चंगाई मिली। God of that lake appeared there. उस तालाब का जो परमेश्वर था वो वहां पर प्रकट हुआ। God of angels appeared there. और स्वर्गदूतों का परमेश्वर वहां पर आया। God is same yesterday, today and forever. परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक है। He is going to heal many of you. और परमेश्वर आप में से बहुतों को चंगा He is going करेगा। to heal your relations. वो आपके संबंधों को ठीक करेगा। He is going to heal your parents. वो आपके माता पिता को चंगा He is करेगा। going to heal your husband. वो आपके पति को चंगा He is going to करेगा। heal your wife. वो आपके पत्नी को चंगा करेगा। If you have a knowledge that He alone is my Savior, अगर आपको ये ज्ञान है कि वही मेरा केवल उद्धार करता He है, alone is my Redeemer, वही केवल मेरा छुटकारा देने वाला है, then your knowledge will work. तब आपका ज्ञान काम करेगा। You will no more be in silent. आप शांत नहीं रहेंगे। And I believe that in this end time, God is going to prepare us all. और मैं विश्वास करता हूँ इस अंत समय में परमेश्वर हम सबों को तैयार As Oracle करेगा। was sharing, I remembered that scripture which is well known to each one of us. और जब ओरेकल बांट रही थी तब मुझे एक वचन याद आया जो हम सब जानते हैं। Hosea 4:6. होशे 4:6। I tell you, never neglect God. मैं आपसे कहता हूँ परमेश्वर को कभी भी नकारो मत। Never ever be behind in receiving the knowledge of God. और परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कभी भी रुक मत जाओ। Never ever go behind in पीछे having मत जाओ। knowledge. पीछे मत जाओ ज्ञान प्राप्त करने For के। God is knowledge. और परमेश्वर ज्ञान है। If you know your God, अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, if you know your God, अगर आप अपने परमेश्वर को जानते हैं, you shall do mighty exploits. तब आप बड़े बड़े काम You करेंगे। need to know who is God, आपको जानना चाहिए कि परमेश्वर कौन है। the one who
had a stripes on his back is your Lord, your God. जिसके पीठ पर जख्म है वो कोड़े खाए, कोड़े खाए जिसने आपके लिए, वो आपका परमेश्वर and है। healing comes to you right now. और इसी क्षण आपके पास चंगाई आती It's है। no one but your knowledge will open the door. और कोई नहीं पर आपका ज्ञान इस दरवाजे को खोलेगा। If you know your God, अगर आप अपने परमेश्वर को जानते you हैं, shall do mighty exploits. तब आप बड़े बड़े काम करेंगे। Hosea 4:6 says होशे 4:6 कहता है in DRB Bible, DRB बाइबल में, my people have been silent. मेरे लोग शांत हैं। Yes, शांत हो गए, चुप हो गए, मुंह बंद हो गया है, because they don't have knowledge. क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। They are speechless. वो शब्दहीन हो गए, उनके मुंह में शब्द ही नहीं है। Why, you know? आप जानते हैं क्यों? They don't have knowledge. क्योंकि उनको ज्ञान नहीं If है। you know your God, अगर आप अपने परमेश्वर को जानते you will हैं, open your mouth. तब आप अपने मुख को खोलेंगे। Children of God, you are not called to be silent, in silent. हे परमेश्वर के बच्चों, आपको चुप बैठने के लिए नहीं बुलाया गया। Trust that and know your God. अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पे और जानते हैं He is उसे, the one who has netted you in your mother's womb. वो है जिसने आपको आपके माँ के गर्भ में जोड़ा है, रचा है. रचा He है, joined, he made, he did everything. उसने उसे जोड़ा है, सब कुछ बनाया He है। is same yesterday, today and forever. वो कल, आज और युगानुयुग एक सा Give है। your body to God. अपने शरीर को परमेश्वर को दो। As Jephthah's daughter knew God, जैसे यिप्तह की बेटी परमेश्वर को जानती थी, she knew that my Lord gave victory to my father. मेरा परमेश्वर ने, यहोवा ने मेरे पिताजी को विजय दी है। And that knowledge has set her free to give herself to God. और उस ज्ञान ने उसे छुटकारा दिया परमेश्वर के लिए। And she was no more put in silent. और वो चुप नहीं रही। Today I say, let every wicked be put in silent. मैं आज कहता हूँ कि हर दुष्ट चुप हो जाए। Every dirty man be put in silent. और हर एक गंदा व्यक्ति Every चुप हो hand जाए। which raised against the house of God be withered. और जो कोई परमेश्वर के घर विरुद्ध उठता है वो सूखा हो हर जाए। हाथ जो परमेश्वर के घर के विरुद्ध उठता है वो सूख जाए. But you church, पर आप कलीसिया, you children of God, आप परमेश्वर के बच्चे, let you have a word in your mouth. आपके मुख में शब्द होने Do चाहिए। not be in silent. चुप मत रहिए। For God, you need to open your mouth. परमेश्वर के लिए आपको अपना मुख खोलना है। Stand up. खड़े हो Be जाइए। strong. सामर्थशाली Hosea रहिए। 4:6 says, my people are destroyed for lack of knowledge. होशे 4:6 कहता है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। Destroyed means नष्ट हो गई मतलब kept in a silent. चुप रह गई। Put it in a shame. उनको शर्मिंदा किया गया Because they don't have knowledge. क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। Daniel said, दानियल ने if you कहा, know your God, अगर आप परमेश्वर को जानते you हैं, will do mighty exploits. तब आप बड़े बड़े काम That करेंगे। means you will flow in zeal. इसका मतलब है आप जोश में बहेंगे। And that zeal will bring it to work. और वो जोश जो है आपको काम में लेकर आएगी। Because you have rejected knowledge, इसलिए क्योंकि तूने ज्ञान को तुच्छ I will जाना, also reject you, says the Lord. इसीलिए मैं तुझे अयोग्य ठहराऊंगा। Have knowledge right now in Jesus' name. अभी इसी क्षण ज्ञान को प्राप्त करो। By his wounds you are healed. उसके जख्मों से आप चंगे हो गए थे। By his stripes you are healed. और उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए He थे। is same, church is same. वो एक सा He परमेश्वर will है, not change. वो कभी नहीं Let every बदलता। man be a liar, हर एक व्यक्ति झूठा ठहरे, but let God be true. पर परमेश्वर सच्चा ठहरे। Be filled with zeal. जोश से भर जाओ। Be filled with Jephthah's zeal. यिप्तह के जोश से भर Say, जाओ। Lord, I am going to win in this battle. कहो प्रभु मैं इस युद्ध में जीतूंगा And you're going to give me victory. और तू
मुझे विजय देगा And I'm going to offer anything, Lord. और मैं कुछ भी तुझे चढ़ाऊंगा खुदा Our God is not a God who is going to take an offering, burnt offering of human being. और हमारा परमेश्वर वो नहीं है जो मनुष्य की बलि को चाहे No, नहीं but He wants your bodies to be holy, acceptable and pleasing to God. आपका शरीर परमेश्वर को ग्रहणीय, पवित्र और भावता हुआ रहे. That is what He is expecting. वो आपसे अपेक्षा करता है Be ready, church. तैयार हो जाओ Don't be कलीसिया worried. चिंता मत Be करो filled with zeal, जोश से भर जाओ right way of knowledge with परमेश्वर zeal का सही ज्ञान जोश के साथ will bring a blessings. आपको आशीष में लेके Today we आएगा heard that Paul killed many आज हमने सुना पौलुस ने बहुतों को मारा because no proper knowledge. क्योंकि उसको सही ज्ञान नहीं But the था moment he received proper पर जिस knowledge क्षण उसे सही ज्ञान मिला in the Damascus road, दमस्कस के रास्ते and he पर spoke with that knowledge, और उसने उस ज्ञान से बातें who की art thou, Lord? तू कौन है प्रभु And he said, I am the same. तो उसने कहा मैं वही I हूँ change not. मैं बदलता You नहीं need to change. आपको बदलने You की need to जरूरत receive है this knowledge आपको इस ज्ञान को होना बहुत जरूरी and you है will be healed. और आप चंगे हो And that जाएंगे। Saul was healed. और शाऊल बदल गया He was healed वो चंगा हो and he गया became Paul. और वो पौलुस बन The गया destructor of the church became a constructor of the church. कलिसिया का तोड़ने वाला कलिसिया को बनाने वाला बन गया The same Paul वही पौलुस was used mightily. बहुतायत से इस्तेमाल The किया same गया spirit is वही waiting for you आत्मा आपके लिए रुका हुआ है that you may become a constructive person. कि आप जो है बनाने वाले बने Be filled. भर जाए Joseph forgave everyone. जैसे यूसुफ ने हर एक को क्षमा किया As Joseph led in harmony. जैसे यूसुफ जो है वो शांति में चला As Joseph had the word of God. जैसे यूसुफ के पास परमेश्वर का He was वचन never पहुंचा, afraid of any situation, किसी भी परिस्थिति से नहीं but डरा declared, Lord, पर परमेश्वर को घोषणा Ghoshna, किया have knowledge ज्ञान प्राप्त करो and declare God. और परमेश्वर का There की घोषणा wait करो victories for you. वहां पर आपके लिए विजय रुकी There हुई wait है healing for you. वहां पर There चमत्कार wait रुकी miracle है for you. वहां पर There wait चमत्कार an रुका open हुआ door है for you. वहां पर आपके लिए खुला हुआ द्वार Today है we heard, आज हमने सुना if you know you shall do mighty exploits, अगर आप जानते हैं तो आप अद्भुत काम करेंगे you will not be afraid. आप डरेंगे Be नहीं filled with zeal of God. जोश परमेश्वर के जोश से भर जाए Do not reject his knowledge. उसके ज्ञान को नकारे If नहीं you reject it, अगर आप नकारते हैं then he will reject you. तब वो आपको नकार But देगा here in 1 Peter 2:9, पहला पत्रस 2:9 में कहता है you are a royal priesthood. आप जो याजक हैं। राजकीय याजक Somebody हैं, say कोई hallelujah. के हालेलुया। Be constructive. और आप बनाने वाले Give बनिए। yourself. अपने आप को दे दीजिए Here the word says, I have chosen you. यहाँ पे वचन कहता है मैंने तुम्हें चुना You're है called to be a royal priesthood. और आपको बुलाया गया कि आप राजकीय याजक गण ठहरे For you have knowledge. क्योंकि आपके पास ज्ञान है God bless you all, church. परमेश्वर आप सबों को Your आशीष little दे। efforts. मैं विश्वास करता You are हूँ laboring in the Lord, क्योंकि आप परमेश्वर में परिश्रम कर रहे and your हैं labor will not be in vain. और आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा Amen. If you believe. आमीन अगर आप विश्वास करते हैं Hallelujah. हालेलुया You need to be active in the Lord. आपको प्रभु में एक्टिव रहना है Have knowledge of जोशीला God. रहना है और परमेश्वर के ज्ञान को Should we प्राप्त pray? करना है क्यों ना हम Father, प्रार्थना we करें thank you for this day प्रभु इस दिन के लिए धन्यवाद and your presence. तेरी उपस्थिति के Build लिए everyone, Lord, हर एक को बना especially खास करके this church. इस कलीसिया को Everyone who waits on you. हर एक को जो तुझ पर रुका Let है their ears be opened और इनके कान जो है खुल जाए to hear clearly. साफ रीति से सुनने के Every लिए pain in their heart, हर एक दर्द जो हृदय में है, every pain in their mind, हर एक दर्द जो उनके मन में है be thou out. निकल जाए We pray, Lord. हम प्रार्थना करते Your हैं word, तेरा वचन which brings healing, जो चंगाई लेकर which आता you है sent forth from heaven जो स्वर्ग से तू भेजता and है healed our diseases. और हमारे बीमारियों को चंगा करता Let है that word work in everyone. वो
वचन हर एक में काम करे Let them be healed. और वो चंगे हो जाए, Let them be healed. वो चंगे हो Let the जाए testimonies come और गवाहियां आए to glorify you. तुझे महिमा You देने be के लिए। glorified, Father. तेरी महिमा हो You पिताजी, be magnified, Father. तू ऊंचा उठाया जाए। Let everyone हर एक who wait on you today, जो तुझ पर रुका रहता let है them receive. वो पाए Let your answers come to you in Jesus' name. और आपकी उत्तरें आपका आपको उत्तर आ जाए आपके यीशु के नाम पास से। पहुंचे यीशु God के is नाम good. से। परमेश्वर Father, अच्छा। you're awesome. पिताजी तू You अद्भुत है, gave much, much more. तू बहुत और बहुत देता You है। gave us much, much more beyond what we can ask and think of. हम सोचे विचारे उसके परे तू देता है। We thank you. हम धन्यवाद We करते praise हैं, you. तेरी स्तुति करते We हैं, worship you. तेरी आराधना करते All हैं। those who wait on you, हर एक जो तुझ पर रुका है let them be blessed. वो आश्रित हो जाए। We worship you. हम Let तेरी every आराधना labor करते of हैं। theirs, और इनका हर एक परिश्रम every efforts which they put down, और हर एक कोशिशें जो वो करते हैं let it be seen through you, Lord. वो तेरी ओर से दिखाई दे। We thank you हम धन्यवाद करते हैं for you are at watch. क्योंकि तू देख रहा है You are सब looking, कुछ। you're putting your eyes on us. तेरी आंखें हमारी ओर है We bless each and every one. और हम हर एक को We आशीर्वाद करते thank हैं। for each and every one. हम Pray for the open doors. खुले दरवाजे के We लिए pray for प्रार्थना, your very presence. तेरी उपस्थिति के लिए We मांगते हैं। worship you, Lord. हम तेरी आराधना We करते thank हैं। you. हम In धन्यवाद Jesus' करते हैं loving name. यीशु के प्यारे नाम में। Amen.